Make the 10 marking. Yes, Sunflower has come. Yes, good morning, children. Good to see you. Settle down fast. You are late in joining. Lotus has also come. Please keep module in front of you and your notebook also. Your hand should be down on the notebook. Few children are sitting with closed notebooks. They are not opening and the module is also not there. Your pen should be ready. Hands down, not on the face. If you sit like this, it means you are lazy in writing. You have to be active by putting your hands down on the notebook. Be ready yourself. Okay, please mark this line straight. We are going to recall what we did last week. Very good, everyone. Straight line, we are starting from 4. Let us make 4 lines at equal distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Approximate equal distance, you know it. You are not using scale. You can imagine, you can put, जिन बच्चों को problem होते हैं ना, they can put 2 fingers gap. Put 2 fingers in between, mark a line. फिर 2 fingers and दो. If you have small fingers, you can take 3 fingers also if you have a space. ठीक है? Fingers का gap लो, then equal distance पे आपके सारे आएंगे. Marking. ठीक है? Now, you know it after 4. I have written here in the beginning. Lotus section बेटे, good morning all of you. Modules आपके पास है, notebook आपके पास है. Yes, be ready. I just started. मैंने कुछ खास नहीं बोला अभी. I'm starting now in front of you. You have not missed anything. We are starting by revising what we did last week. उसके बाद हम मॉड्यूल शुरू करेंगे. Let us draw a straight line in your notebook. Start from 4. And you know this marking is showing 4 and 1 by 10. 4 and 1 by 10. Next mark is showing 4, 2 by 10. Next is showing 4, 3 by 10. 4, 4 by 10. You know why we are writing up and down? So that वो आपस में clash नहीं हो और आपको clearly every marking should be seen कि वो क्या represent कर रही है, which number it is depicting. Okay? And who are not understanding कि why we are taking 1 by 10? Please raise your hand. Lotus section BT, don't talk now. Everybody look straight. You have already late in joining. Okay? Raise your hand. Have you understood why we are taking 10 in the denominator? Raise your hand. Have you understood? ये पेंजी कहाँ से आ गई है? पेंजी सेक्शन भी है इनका. अच्छा अच्छा. Yes. If you don't know, then ask me. Raise your hand who have understood why we are taking 4, 1 by 10. Why we are taking 10 in the denominator every time. Raise your hand. Do you know? Because there are 10 parts. Okay. 4 के बाद हमने 10 parts लिए. That's why we are taking first part को 1 by 10, second part को 2 by 10 and so on. Keep writing further. अपने आप लिखो. 4, 5 by 10. 4, 6 by 10. 4, 7 by 10. 4, 8 by 10. Keep writing 4, 9 by 10. And this is 4, 10 by 10. And which is showing you number 4, 10 by 10 क्या depict करेगा? Which number it will be? It will be 5. It will be 5. ठीक है? Please see here. Here there are we are writing 2 numbers against this point. 4, 10 by 10 भी लिख सकते हैं उसको और 5 भी लिख सकते हैं. Is it fine? Now let us move further because I want to tell you कि हम आगे वाली marking को कैसे follow करते हैं. Let us mark few points. 1, 2, 3, 4. अगर आपके पास space नहीं है थोड़ा tight कर लो, इसको 1 finger का gap कर लो because you are focusing on your understanding. ठीक है? Next marking क्या होगी? It will be 5, 1 by 10 और 5, 1 by 10 तो होगी because वो we have jumped 5. 5 से next वाली marking we are counting.
ओके और क्या हो सकती है? कैन इट बी 4 11/10? क्या ये 4/11/10 भी हो सकती है? रेज योर हैंड. यस. कैन इट बी 4 11/10? यस. You are not raising your hands, but I can see you nodding your heads. It means whenever in question you see 4 11/10, it is equivalent to 5 1/10. Similarly, next is 4 12/10 and it is also equal to 5 2/10. हम किसकी बात कर रहे हैं? इस पॉइंट की बात कर रहे हैं. अभी हमने थोड़ा सा नैरो किया है ना, अभी हमें थोड़ा एरो लगाना पड़ रहा है कि हमारा जो है वो ये 5/10 शो कर रहा है, तो नेक्स्ट वाला क्या शुरू करेगा? 5 2/10. डू यू अंडरस्टैंड द नंबर लाइन? कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे हमारे नंबर जो है वो आगे आगे चलते जाते हैं. सेम नंबर यू सी ऑन द नंबर, आप या स्केल के ऊपर देखते हो, आप स्केल के ऊपर क्या डिपिक्ट करते हो? दिस इज 4 1/10. व्हाट डू यू कॉल इट? वी कॉल इट, और क्या बोलते हो इसको? 4.1. यू राइट इट इन डेसिमल फॉर्म और नॉट? Similarly here 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 and so on. It is going. Pencil section. Pencil section put on video beta if you. Okay. This number line is the basic of your chapter. अभी आप क्वेश्चंस करने वाले हो मॉड्यूल से, ठीक है? If this line is understood by all, you will find the questions very simple. Any doubt? Anything you want to ask here? Chalo, let us start the module. Keep module in front of you. Module 1 we are doing. First question is, which of the following represents 15 and 5 1/10? Your notebooks, आपके बेटा नोटबुक का रफ कॉलम बना होना चाहिए. You have to write many things and your module should also be there. If you are doing it mentally, it is fine. You tick mark the answer. If you have to do little calculation, you have to write little note over there ki what we are going to do, you use which formula we are using, then you can write in your notebook. So first one is, which of the following represents 15 and 5 1/10? Daffodil section, Amrit B. Singh. Excuse me, ma'am. Yes, पेंसी का पेंसी का ये वीडियो ऑन नहीं है सर. ये ऑन नहीं है मैम. हाँ जी, इनका वीडियो तो ऑन है. हाँ जी, ऑन है सर यहाँ पे वीडियो. मुझे कॉल आई थी मैम, ऑन नहीं हो रहा. वीडियो हमें नहीं दिखाई दे रही है सर, यहाँ पे नहीं आ रही है. ओके मैम. Daffodil section, beti, I was asking you, are you there, beti? Can you tell me the first answer? Which option is matching? C, ma'am. C, it is 15 5/10. Who agree this is C option? Raise your hand. जिनको लगता है कि yes, 15 5 1/10. Very good. इसका what is the other name of this? Thank you, beta, sit down. What is the other name of this? If we call it, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 15 1/10, और क्या लिख सकते हो इसको? अगर आप कहीं बुक में कुछ और पढ़ते हो, if you study in book that it is 15 tenths, 15 5 tenths, it is 5 there ना, 15 5 1/10 है. आप यहाँ पे लिख रहे हो 15 and tenths, 5 tenths. यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ only tenths. Are they same or different? Are they same? Raise your hand. Are they same? If yes, raise your hand, please. They are same. ठीक है, ये आपने बेटा 6th में भी पढ़ा हुआ है.
6th क्लास में जब आपने फ्रैक्शन का चैप्टर किया था, you did it that if we write here 7 to 5th तो आप क्या करते हो? 7 2/5. Okay, if I write here 2 7 2/7, इसका मतलब 2/7. Pencil section यहाँ ना? Yes, I can see you now, beta. Yes. Please, beta, open your module. We are doing the first question. See here, first question's answer is question number 1. Option is C. We are talking it as 15 5/10. 15 5/10. First question का ये option है. Please tick mark it. Pencil section module है बेटे आपके पास. We have done just the first question. Number name में we are calling it as 15 and 5/10. In mathematically, we write it as C option, which is 15 5/10. Second question is 10 1/10, 11 by 100. What is the option of that? I'm writing here also. And इसको ध्यान से देखो and tell me what option is matching. What we call it? 10 1 1/10 and 11 hundredths. कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? Sunflower section, Gurleen Kaur. फास्ट, थोड़ा सा जल्दी आओ बेटा. Which option is matching? Mic on करो. See the options carefully, okay? Tell me. B or D? B में क्या है हमारे पास? B में वो कह रहे हैं कि 10 and 1/10 and और क्या बोल रहे हैं? 11 hundredths. 11 hundredths. इन्होंने बोला hundreds. Hundreds का क्या मतलब है? Hundreds का मतलब है 1100. Okay, see the difference बेटा. जब हम स्पेलिंग्स में DS लिख रहे हैं तो वो हमारा न्यूमरेटर में शो करेगा, और जब हम इसको हंड्रेड्स लिखेंगे, हंड्रेड्स THS, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 11/100. सी द डिफरेंस बिटवीन देम. THS का मतलब डिनोमिनेटर में 100 है, विदाउट THS का मतलब है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है. ध्यान से देखो. नाउ टेल मी विच ऑप्शन बेटा? D. Raise your hand who say D. जिनको D option दिख रही है matching. Very good. It is D option. Be very careful. Don't be in hurry. Thank you, beta. Sit down. Don't be in hurry. This is not difficult. You have to be cautious in reading the spellings. That's it. Who are doing very carefully with full concentration, they cannot make mistake. It is D option, right? Third question. Which of the following is the largest? अपनी नंबर लाइन को, फर्स्ट नंबर लाइन को देखो जो हमने ड्रॉ की थी बिगनिंग में. नंबर लाइन के ऊपर देखो जरा, आपको लगता है कि ये कौन सा बड़ा होगा? 6 5/10 बड़ा होगा, या फिर 5 6/10, या 5 9/10, या 6 6/10? केयरफुली अपनी नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो. आई थिंक पेंसिल सेक्शन ने नंबर लाइन ड्रॉ नहीं की थी. नंबर लाइन पेंसिल सेक्शन आई एम ड्रॉइंग फॉर यू. दिस इज द नंबर लाइन बेटा. इट इज 4 1/10. दिस इज 4 2/10. आपको ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ कर सकते हो. पेंसिल सेक्शन जॉइंट लेट. प्लीज नोट इट डाउन कि हर एक नंबर हमें आगे 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 क्या रिप्रेजेंट करता है. सो ऑन. आफ्टर डूइंग, व्हेन यू रीच एट 4 10/10, इट इज शोइंग यू 5. They are same. Pencil section ये नंबर लाइन ड्रॉ करो, and rest of the section, lotus section बेटा
Please tell me what is the answer of third part. Lotus section, Abhijot Singh Gill, roll number 1. Pansy section, draw this line, mark it बेटा कि कौन सी नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ जी बेटे, are you telling me? It is B. B में हमारे पास बेटा है 5, 6/10. ये हमारे पास B ऑप्शन है. ओके, इसका मतलब वो 5 के आसपास है, 5 से थोड़ा आगे है. लेकिन इसमें तो 6 वाली ऑप्शंस भी है बेटा. B तो मैंने लिख लिया यहाँ पे. B तो मैंने लिखा है 5, 6/10. You are saying D? Are you saying D? D for dog? Yes, you are saying 6, 6/10. This is the largest because वो 6 से आगे जा रहा है. ठीक है, 6, 6, 6/10. You know it is moving to the right and you are getting the largest number. Very good. Raise your hand who agree कि yes 6 इसके D option होनी चाहिए. Okay, thank you beta. Sit down. Very good. It is C. Pansy section. Have you understood D option? Pansy section, raise your hand. Have you understood how D has come? Question number 3 की आपका जो आंसर है, that is the D option. Okay, good beta. Good, good. Hands down. You can ask me your doubt also. Pansy section, if you're not understanding any point, please ask me. Fine. This is D option. You have understood the points. आपके आंसर से मेरे को पता चल रहा है कि you have understood the concept. Very good. Fourth question. What is the value of this number? Number is given to you. Write it down. Pen चलाओ अपना. Don't rely on your mind alone. Mind will divert. Mind will think of your question for a second and in another second it will think of something else. ठीक है, move your hand side by side ताकि आपको mind को concentration मिले कि हम क्या लिख रहे हैं. Look here बेटा, D part, fourth question is, it is written 34 10/10 plus 33/10. सबसे important काम है, हमने numbers को recognize करना है. Okay, don't be in hurry in telling the answer. 34 10/10 plus 33/10. Concentrate on the numbers. Who are writing? Tell me, who are writing it? Very good. Who are writing, they cannot make it wrong. Okay, third bench boy, sunflower section, who is raising his hand? Jaldi se aa jao, mere ko answer batao iska. Very good. Corner boy, aa jao. Very good, beta. Tell me your name also. 3 boys are sitting together in the middle row. Yes. In the middle row, 3 boys are sitting together. I'm calling you. Yes, yes. Very good. Yes, yes. चलो आप डिस्कस करते रह गए, आपके आगे वाला बच्चा आ गया. हाँ जी बेटे, which option? मैम B. B. It means you are saying 64 9/10. क्या आप ये बता रहे हो? मैम D बता रहे हो आप. Okay, D हमारे पास क्या है? It is 34 13/10. You are telling me this one. Okay. How did you do? कैसे किया ये आपने क्वेश्चन बेटा? मेरे को मेथड बताओ. मेथड आपने कैसे किया इसको? अगर आपने इसको मेंटली किया बिना लिखे, फिर आपकी गलती है. इसको लिख के देखो एक बार. ओके, बैठो बेटा, सीट पे बैठो. एवरीबडी लुक हियर नाउ. जो कह रहे हैं कि बी ऑप्शन होगी, रेज योर हैंड. हु से बी ऑप्शन? नो, नोबडी इज सेइंग. हु से डी ऑप्शन? ओके ओके ओके, जबरदस्ती नहीं करो. ओके, इट्स फाइन. यू हैव अ डाउट, इट मीन्स यू हैव अ डाउट. ओके, एनीबडी एल्स जिसने कोई और ऑप्शन की है? लेट अस डू द स्टेप्स. ठीक है, नोटबुक में इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज राइट इट एंड सॉल्व इट. मेंटली कर रही हो इसलिए थोड़ी सी गलती कर रही हो. ठीक है, राइट डाउन द स्टेप्स to understand it deeply. You know what is there? It is 34.
34 10/10 का मतलब 34 and 10/10 plus 30 and 3/10. Do you understand this? जब आप बोलते हो बीच में and बोल रहे हो आप, and का मतलब plus. Is it fine? Still children are not moving their pens. जब तक लिखोगे नहीं समझ आएगा. If you are sitting like this by holding the pen, you will not be remembering it forever. अभी तो समझ आ जाएगा because you are listening to me carefully. Okay, if you want to remember it forever, please write it down. See here, we are talking. अभी आपने फर्स्ट ऑप्शन में बताया 34 and 10/10, 30 and 3/10. इसका मतलब सबके साथ प्लस है. इसका मतलब क्या हुआ? It is 34 plus 1 plus 30 plus 3/10. Okay, write all the steps. 2 times लिखो, 3 times लिखो उसको, क्वेश्चंस में परफॉर्म करो जब तक नहीं समझ आती. जब समझ आ जाएगी फिर उसको मेंटली करना. Okay, so according to me it is coming 65 plus 3/10, which is equal to 65 3/10. It is E option. E option is telling you 65 3/10. Very good. Write down all the steps. Such question can come you in subjective, come to you in subjective form also. 2 marks का ये question भी आ सकता है आपको कि what is the answer of this. Solve it. Solve it. तो solve करोगे तो क्या करोगे? बीच में addition का sign डालोगे और फिर उसका steps करके final answer बताओगे. Raise your hand who have written all the steps. हाथ खड़े करो. नोटबुक में जिन्होंने पूरा solve किया है. Very good. Very good. I cannot see your notebook, but I can believe that you are writing by full interest because this is a new things you are learning better. Very good. I will come to know. आगे जब आप response करोगे मेरे को बाकी questions के I will understand कि आपको समझ आ चुकी है. Okay, this was new question for you. It is E option. Okay. Sunflower section say that boy who came to me, जिसने मेरे को आंसर बताया था. Have you understood बेटा? How E option has come? क्या आपने क्वेश्चन नोट किया ये पूरा सारे स्टेप्स लिखे हैं? वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. 8/5 इन डेसिमल फॉर्म. ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है, 5th में भी किया होगा ये. आपने 8/5 इन डेसिमल फॉर्म परफॉर्म करो, रफ में परफॉर्म करो डिवीजन. एवरीबडी डू योरसेल्फ. 8/5 in decimal form. Everybody, you know how to do. Match it. Who are getting A option? 1.6. हाथ खड़े कर दो जल्दी से. 1.6. A option. Good. A option 1.6. You know, when you play any game with your friends, you make teams and then do you feel like winning the game. आपको होता है कि yes, I want to win. This is the same. ये जब आप questions करते हो, then also you feel like कि yes, I want to win it. I want to do it correctly. Okay? So this is also an interesting thing. New rule, new method, and you are winning by doing correctly. Okay? Fine. 6th question. It is in decimal form. Write in decimal form. 70 plus 2 plus 4/10. Decimal form में इसको लिखना है. You know it how to do. Rough column ready रहना चाहिए. जो लिख के करेंगी उनका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा. जो सिर्फ सोच रहे हैं बैठ के पेन को साइड पे करके, they will take lot of time. Who are not writing, they will just listen to me, but they will not understand. Who are writing, they are the true winners, I must tell you. In decimal form. एक स्टेप फॉलो करो इसमें. लिखो इसको. 70 plus 2 is 72.
plus 4 by 10, which is equal to 72 plus 0.4, which is equal to 72.4. Write down 2 steps. Write down. MCQ questions can occur in your subjective questions also. So you should know the rule also, how the steps are coming to follow the answer. आंसर तक पहुंचने के लिए आपको मे बी 1 स्टेप लिखना है, 2 स्टेप लिखने हैं, ठीक है? Whatever is there, do it. Write it now. Okay, which option is matching? C option, right? Mark it and write down the calculation also. 7th question. मैम पेंजी की वीडियो रिक्वेस्ट भेजना प्लीज. Okay. थैंक यू मैम. Welcome. Yes, question number 7, last MCQ. Lowest form of decimal. In your module बेटा जहाँ पे lowest form लिखा है, वहाँ पे लिख लो और standard form. और standard form. Lowest form और standard form एक ही बात होती है. Do you know it? Yes, you know. आपने 6 में पढ़ा होगा. Standard form. लिख लो, मॉड्यूल में ही लिख लो. Lowest form or standard form of decimal 0.005. Please आप ही बताओ मेरे को. You know it. You know how to do. Everybody do it. Sunflower section. Sahajpreet Kaur. Roll number 26. Please tell me what is coming. ये तो बिल्कुल oral question है. Very simple for you. I know काफी बच्चों ने कर लिया होगा. Betty, have you done? B option, it is 1 by 200. हाथ खड़े करो किस किसने किया है. B option, 1 by 200. Good. पहले आपने डेसिमल को रिमूव किया, उसके बाद उसको आपने काटा अप एंड डाउन. ठीक है? Very good. It is B option. Mark it. Now come to assertion reason. Appenzi section आपका बेटा बीच बीच में कट हो रहा है. I'm going to write the answers once again. See here. Question number 1, it was C option. सब लोग मैच कर लो. Question number 2, it was D option. Question number 3, it was your D option. Question number 4, it was your A option. Question number 5, it was again A option. And question number 6, it was C. Sorry, all the children, please match all the answers. It is B option. By mistake अगर कहीं गलती की है तो please click कर लो, because B and D में थोड़ी confusion होती है. And Pansy section also please write down all the answers. In between आपका कट हो रहा था video. These are the answers of MCQ. Anything you want to ask, you can ask me also. ठीक है? Today or in next class, whenever you want. Now start the assertion reason. First assertion, 7/10. Take care, वहाँ पे THS है. Tenths. We are talking about 7 by 10. Is written as 7 into 10. 8th question. Assertion. जिनको लगते false है हाथ खड़ी करो. It is false. You know, हमारा
वी टोल्ड यू कि टेंस का मतलब होता है 1/10. प्लीज रिमेंबर THS इज टेलिंग अस इट इज in the denominator. Okay, it's false. Reason is in place value chart, tens place is to the right of ones place. प्लेस वैल्यू चार्ट सबको पता है. प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? यू नो इट. ऐसे वाला प्लेस वैल्यू चार्ट आपने जो पहली छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसमें यहाँ पे वंस है, यहाँ पे टेंस है, तो यहाँ पे टेंस होता है. ठीक है, 1 10 और यहाँ पे 1/10. अगर नहीं पता तो नोट इट डाउन. दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, यहाँ पे 1/100 एंड सो ऑन. तो हमारी रीजन क्या होगा? ट्रू. So this is D option. हाथ खड़े करो जिनके पास डी ऑप्शन है, जिन जो सोच रहे कि यस इट इज डी. वेरी गुड, वेरी गुड. यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. वेरी गुड बेटा, हैंड्स डाउन. नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन. 3952/100 is written as what? Question number 9. 9 assertion. 3952/100 is written as 39.052. Look at the question very carefully. 3952/100 is equal to 39 point क्या होना चाहिए यहाँ पे? लोटस सेक्शन. नहीं, मनमीत सिंह, रोल नंबर 21. लोटस सेक्शन. Come fast. Manmeet is present. He is absent. He is absent. Can you tell me? Have you done it, beta? No, you have not done. Don't worry, don't worry. आपने हिम्मत की है, आगे आगे मेरे को वो बता रहे हो. Doesn't mean कि I will catch you. नहीं किया तो it is okay. Anybody else from lotus section? Decimal form. Yes, beta. You are raising your hand. Lotus section. Yes, आ जाओ बेटा. हाँ हाँ. The boy who came just now, आपके साथ वाला boy उधर corner में. You know when I'm doing like this, it means आपके जहाँ आप बैठे हो आपके लेफ्ट साइड पे, आपकी लेफ्ट साइड पे. The boy is raising his hand. आ जाओ जल्दी से. Very good. You have done. Come forward. Okay, हाथ खड़े करो जो कह रहे हैं कि फॉल्स है. हाथ खड़े करो जिनको लगता है कि ये फॉल्स है. डेसिमल फॉर्म में क्या होना चाहिए? एक्चुअली इट शुड बी 39.52. बट यहाँ पे लिखा हुआ है 39.052, विच इज रॉन्ग. इट इज फॉल्स. अब हाथ खड़े करो कौन कह रहे हैं कि हाँ ये फॉल्स है. यस, गुड गुड. Many children knew it. Lotus section, हाथ खड़े करो. Do you agree this is false? Yes. Okay, good. This is false, and reason is 1/1000 shows the thousandth place, which is true. I told you place value के ऊपर आपके पास यहाँ पे अगर वंस है, यहाँ टेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/10, 1/100, 1/1000. और इनको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं. दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स. स्पेलिंग देखो इसके, THS, एंड दिस इज थाउजेंड्स. पीछे THS आएगा, पीछे THS आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1000 है. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 के बाद THS आया. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं. सो रीजन इज ट्रू. सो इट इज डी ऑप्शन. किसी को डाउट हो रहा है तो उठ के भी पूछ भी लो कि वाई. इफ यू आर नॉट आस्किंग तो आई एज्यूम कि आपको समझ आ रहा है, एंड आई एक्सपेक्ट द आंसर्स ऑल्सो फ्रॉम यू.
किसी को कुछ पूछना है इनमें? दिस इज डेप्थ ऑफ द चैप्टर। जब आप असर्शन रीजन करते हो इसका मतलब आपकी सारी नॉलेज चैप्टर की में जितनी भी आपने पढ़ी है सारी आपसे डिस्कस की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10, assertion 1 millimeter is equal to 1 by 10 centimeter is equal to 1/10 is equal to 0.1 centimeter. Is it true? हाथ खड़े करो। मिलीमीटर सेंटीमीटर हमने लिखा था पहले भी। Yes, good, good, very good. This is true. सेंटीमीटर मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो आप सबसे पहले सीखते हो जब भी कन्वर्जन सीखते हो। आपको केजी ग्राम बाद में आता है, लीटर एंड ऑल। सबसे पहले मीटर एंड सेंटीमीटर के बारे में बताया जाता है एंड मिलीमीटर सेंटीमीटर का रिलेशन बताया जाता है। ओके, यू यूज इट इन साइंस ऑल्सो। रीजन, सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट देन मिलीमीटर। क्या सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मिलीमीटर से छोटा है? Yes, it is. No, it is false. So it is C option. आपको पता है नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे अगर 4 है, यहाँ पे 5 है, तो बीच के जो नंबर्स होते हैं वो मिलीमीटर में काउंट होते हैं। छोटे 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 छोटी जो हमारी यूनिट्स होती हैं, मेजरमेंट्स होती हैं, वो हमारी मिलीमीटर में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अदरवाइज वी से 4 to 5 को हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, कंप्लीट 1 सेंटीमीटर। बीच बीच के जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम मिलीमीटर्स में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 11th क्वेश्चन, assertion. The fraction 1 by 25 can be written as 4 by 100 which is equal to 0.004. 1 by 25, राइट इट। लिख के पता चलेगा आपको, जो बच्चे हाथ चला रहे हैं उनको समझ आएगी। वेरी गुड। सनफ्लावर सेक्शन, मूव योर पेन, राइट इट। Without writing, you will not be doing any question because आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो अभी हमारे साथ। ठीक है, जब आप परफेक्ट हो जाओगे तब थोड़े थोड़े आपको मेंटली करने आ जाएंगे। तो नाउ इट इज 1 by 25 कैन बी रिटन एज 4 by 100 also. Is it true? Raise your hand. Do you agree 4 by 100 is equal to 1 by 25? इसको लोएस्ट फॉर्म में करो। 25 4 100। अब आप 7th क्लास में हो, थोड़ा सा ये नहीं कि 2 से करोगे फिर आगे चलोगे, डायरेक्टली यू शुड नो। कुछ कुछ प्रोमिनेंट नंबर्स होते हैं। वेरी गुड, आई कैन सी हैंड्स इन सनफ्लावर सेक्शन। यस, गुड गुड गुड, हैंड्स डाउन। यू शुड डू थोड़ी थोड़ी मेंटल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि 4 into 25 is 100। ठीक है, अब आप कहोगे कि 25 का टेबल आपको याद नहीं है। इट्स ओके, अगर नहीं याद है तो कुछ कुछ जो बीच बीच में प्रोमिनेंट नंबर्स हैं दैट यू शुड नो मेंटली। 25 4s are 100। ओके, सो इट इज 125 विच इज इक्वल टू, डेसिमल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो 0.04। इज इट ट्रू? रेज योर हैंड। इफ यस, रेज योर हैंड। ट्रू? वंडरफुल, दिस इज ट्रू। 11th question, reason 1 by 25 in the lowest form or standard form is written as 4 by 100. अभी अभी आपने बताया, so this is also true. Okay, आपकी यहाँ पे आएगी ए ऑप्शन। 11th क्वेश्चन में दोनों ट्रू हैं, दोनों रिलेटेड हैं। ऊपर भी 4 by 100 की बात हो रही है, नीचे भी 4 by 100 की बात हो रही है। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई ऑप्शन इज ए। टिल नाउ एनी डाउट? अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किए हैं, किसी को कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन में? यू वांट टू आस्क? चलो, लेट अस मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 12, assertion in the place value, आपका place value जो चार्ट है, as we move from left to right, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं,
तो क्या होता है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर बिकम्स 1/10 ऑफ द प्रीवियस फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मतलब है कि किससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हो आप, 1/10 1/10 1/10 एवरी टाइम। हाउ, ड्रॉ दिस, ड्रॉ करो प्लेस वैल्यू चार्ट एवरीबॉडी। छोटा सा प्लेस वैल्यू चार्ट अपने सामने बनाओ ताकि आपको पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास है वंस, दिस इज 10, ठीक है। यहाँ पे 1/10, 1/100, दिस इज 1/1000। यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे 10 है। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है आपके सामने। What they are saying in this sentence is, as we move from left to right, जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, एवरी टाइम हम उसको यहाँ पे 1 को यहाँ पे जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है। यहाँ पे इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/100 आ रहा है। फिर 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/1000 आ रहा है। हमेशा 1/10 1/10 1/10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो और आपके पास नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है। ओके, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1/10। हाथ खड़े करो जिनको लगता है कि यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। यस, वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड। जिनको नोट डाउन करना है प्लेस वैल्यू चार्ट अपने सामने लिख सकते हो। आपने ये 5th में यूज किया था, 6th में यूज किया था, अभी आप फिर से इसको यूज कर रहे हो बट इन अदर फॉर्म। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक इज द सेम बट अंडरस्टैंडिंग इज इंक्रीजिंग according to your class. Okay, this is true. Reason is 8 3/10 centimeter is equal to 8.3. Is it true? Yes. अभी आपने यूज किया था क्वेश्चंस में। Yes, ये मेंटल था करने वाला, इट इज बी ऑप्शन। ठीक है, अभी आप एक्सपर्ट हो गए हो इतने क्वेश्चंस करके। Sunflower section, children who are sitting, 3 children are sitting on one bench, you are disturbing each other, I hope. Don't talk to each other. पीछे bench खाली है, if you want to move you can go there. I'm talking about second bench, middle row, sunflower section. Don't talk to each other. Even if you know it, don't disturb each other. Okay, otherwise you will miss important points. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, बट कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बीच में बता रही हूँ ना, you will miss that. Last question of assertion reason. Please see the question very carefully. It is 1.2 is equal to, I'm going to write here, इसको ध्यान से देखो जरा, क्या ये ट्रू है ये फॉल्स है। 1.2 is equal to 1 plus 2/10 is equal to 10/10 plus 2/10. See the steps very carefully. How we are going? It is equal to 12/10. क्या ये ट्रू है? सारे स्टेप्स ध्यान से देखो इसको, मैंने इसको भी डाउनवर्ड्स लिखा है। आपका पर्पस है कि आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। ठीक है, स्पेंड सम टाइम ऑन दैट, थिंक ऑफ दैट एंड टेल मी इज इट ट्रू। जिन्होंने सोच लिया हाथ खड़े कर दो कि यस इट इज ट्रू। यस, गुड। लोटस से आई कैन सी हैंड्स, वेरी गुड। सनफ्लावर ऑल्सो यू हैव थॉट ऑफ। डेफोडिल, एनी डाउट इन दिस? किसी स्टेप में कोई डाउट है? यस, इट इज ट्रू। बेटा ये चैप्टर में ना यही क्लैरिटी है आपकी, कैसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, यही स्टेप्स बार बार आपके फॉलो हो रहे हैं। सो दिस इज ट्रू। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग नेक्स्ट ऑफ रीजन। आफ्टर दिस you see the question carefully and tell me reason of question number 13. It is two fractions can be added in any order. Two fractions can be added in any order. Very good. Instant hands I can see. Very good. Lotus section, first bench boy, middle row. जल्दी से आके मेरे को बताओ कि what is the meaning of this sentence. लोटस सेक्शन, फर्स्ट बेंच बॉय, वेरी गुड। दोनों ने हाथ खड़ा किया था। एक जना आके मेरे को बताओ, वन चाइल्ड कम फॉरवर्ड एंड टेल मी
What is the meaning of this line? All the fractions added in order. What do you mean by order? If I write here 1 by 2 plus 1 by 3. So what do you understand by order? What do you mean by order? Very good. Explain. Tell me in your own words. ठीक है, जो भी आपको समझ आ रहा है मेरे को बताओ. When we add only the numerators. We can write. Very good. What? We add only the numerators first. We can write it like this also. This is the order. कि हमने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर चेंज कर दिया. लेफ्ट वाला राइट पे कर दिया, राइट वाला लेफ्ट पे कर दिया. ओके, चलो, गुड. सिट डाउन. You told me true, which is correct. Please sit down. Thank you. Order का मतलब we can add them in any order. कुछ भी नंबर हम कहीं भी ट्रांसफर कर दें तो उनका आंसर सेम ही आएगा. 2 plus 3 plus 5, 5 plus 3 plus 2 और 3 plus 2 plus 5, whatever way, उनको कहीं मर्जी इधर उधर लिख लो, उनका एडिशन का आंसर हमेशा सेम आएगा. दिस इज ट्रू. तो हमारी ऑप्शन यहाँ पे आएगी बी. राइट? क्योंकि यहाँ पे तो हमने पूरा सॉल्व किया था, डेसिमल से हम फ्रैक्शन पे लेके आए थे, बट यहाँ पे वी आर टेलिंग द ऑर्डर. दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट ऑप्शन विल बी बी. चलो, लेट अस डू नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू राइट एवरी क्वेश्चन इन द नोटबुक. ठीक है, आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, मॉड्यूल में नहीं, बिकॉज मॉड्यूल में नीटली नहीं लिखा जाएगा. बी रेडी विद योर नोटबुक्स. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली आपके क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के हैं. टेक केयर, अगर आपको फुल 3 मार्क्स लेने हैं, यू हैव टू बी केयरफुल. हु वांट टू स्कोर फुल 3 मार्क्स? हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स किसको लेने हैं? Very good. You want to be the winner. Let us start doing question number 14. The lengths of the body parts of a honeybee are given. Picture is given to you. A honeybee is there. Different parts are given to you. Head ka, thorax ka, and abdomen. 3 parts are given to you. Let us write it. It is 2 3 by 10 plus 5 4 by 10 plus 7 5 by 10. No need to write unit again and again. जब आप फाइनल आंसर लिखोगे वहां पे आप यूनिट लिख सकते हो. आपको बार बार यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है when you are adding it. Okay? एडिशन आपने सीखी हुई है ऑलरेडी, 6th में भी की हुई है. Who know it how to add it? जिसको पता है कि हम ऐसे ऐड करेंगे. 6th में आपने क्या सीखा हुआ है? 6th में किए थे ऐसे क्वेश्चंस आपने? मिक्स फ्रैक्शन को ऐड किया था? Yes, हाँ, yes. You can apply that method also. You can do that. If you want, you can do 2 methods over here. मैं दोनों मेथड करूंगी, आपको जो फॉलो करना है आप कर सकते हो. ठीक है, here we are doing जो आपने 6th में सीखा था मिक्स फ्रैक्शन. 10 into 2 is 20, 23 by 10 plus 54 by 10 plus 75 by 10. Okay, and here we are doing the other method जो आपको यहाँ पे it is 2 plus 3 by 10 plus 5 plus 4 by 10 plus 7 plus 5 by 10. You know सारे fractions जो आपस में add हो रहे हैं. You can expand it. 2 and 3 by 10, 5 and 4 by 10, 7 and 5 by 10. सबके बीच में हमने and के बीच में प्लस का साइन लगा दिया. Okay? Very good, do it.
Everybody do it. I'm giving you 2 minutes. You have done a lot of questions. Please perform it. You are waiting for me to do. Don't wait for me. आपको आता है ये क्वेश्चन. एक मेथड ये है करने का, एक मेथड ये है. जो मेथड आपको आता है आप करो. यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑल्सो, यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑल्सो. ये आपने 6 में सीखा हुआ है. वेरी गुड, डू इट. आंसर दोनों का सेम आएगा, डोंट वरी. बी कॉन्फिडेंट. कई बच्चे लिख नहीं रहे हैं. रेज योर हैंड. किस किस को आता है ये? हाथ खड़े करो. जिनको आता है वो लिखो हाथ. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम गोइंग टू डू हियर बेटा. आप मैच करो इससे. ओके, आई एम एडिंग दीज ऑल. You know it, this is first part. Second part is 23 plus 54 plus 75. जिनको आता है, they will not copy. They will do it themselves first and then check from the board whether they are doing right or wrong. Copy down नहीं करना है बिना understanding के. We are doing both the methods. सबको प्लस कर लिया हमने. Who are doing both the methods, raise your hand. Okay, who are doing this method only? Raise your hand. Very good, very good. Who are understanding this also? Second method also understanding. Raise your hand. Very good. Very good. This is the beauty of this subject. बेटा मैथमेटिक्स में आपको अपॉर्चुनिटी है, आपको फ्रीडम है, आप जैसे मर्जी उसको करो. स्टेप्स शुड बी करेक्ट, लॉजिकली होने चाहिए, प्रॉपर रीजनिंग के साथ होने चाहिए. ठीक है. मेथड आपके पास सो मेनी है. डू एनी क्वेश्चन बाय एनी मेथड, इट इज अप टू यू. ओके, दिस इज कमिंग आउट टू बी 14 प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू 15.2. ये देखो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है. ठीक है. 6th क्लास में आपने ये मेथड किया था, 7th में हम ये मेथड कर रहे हैं, सो दैट आपको मेंटल कैलकुलेशन भी आनी चाहिए. आपको जब फ्रैक्शंस को ऐड करते हो, यू शुड नो हाउ टू डू इट ओरली. सच मेथड्स आर यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जब आपको शॉर्टकट में करना होता है सब कुछ. ठीक है. ये मेथड आपको सिखाया गया था बिगनिंग में 6th क्लास में कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, एलसीएम लेते हैं, प्लस करते हैं, फिर डेसिमल लगाते हैं. दैट्स इट. दिस मेथड इज यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अब आप बड़े हो रहे हो, शॉर्टकट मेथड्स आपको सीखनी है, मेंटल कैलकुलेशन सीखनी है. ओके, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज टोल्ड टू यू इन 7th क्लास. सो योर आंसर इज कमिंग 15.2 यूनिट्स. फाइनल आंसर में आपको यूनिट्स लिखना है, अदरवाइज कैलकुलेशन में ओनली नंबर्स विल गो. So I have come to know from this question that you know how to add the fractions and how to subtract the fractions also you will be able to do, I hope. So 15th question I am giving you for homework. All of you will be doing yourselves. Question number 15 is your homework. Now we are going to do question number 16. Question number 16.
जो अपनी नोटबुक में करना है मेरे साथ। 15 के लिए स्पेस छोड़ दो, यू कैन लीव 1 पेज। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन यू हैव कम टू नो कैसे करना है, अभी काफी बच्चों ने अपने आप ही किया था ये क्वेश्चन। परफॉर्म इट, इफ यू डोंट फाइंड इट बाय चांस आस्क मी नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, फर्स्ट पार्ट। केयरफुली डू विद फुल फोकस, सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। हाउ मेनी 1000s मेक 1 यूनिट? Who are looking in the module, it means they are reading the question very carefully. जब भी sentence form में question आता है, read it 2 times. Many students they think of कि एक बार पढ़ के ओहो difficult है, no, they forget, they start looking here and there. Read it twice, thrice. Sentence को 2 बार पढ़ो. Read it 3rd time. It will start giving you hint. How many 1000s? How many means 1000s. 1000s. How many? To give you 1 unit. Write it. Sentence को अपनी मैथमेटिकली लिखो। ठीक है बेटा, अपनी अप्लाई करो, अप्लाई योर नॉलेज बाय राइटिंग। अगर आप सेंटेंस को 10 बार पढ़ते जा रहे हो, लिखते अपना पेन नहीं चला रहे हो, you will take lot of time in understanding, but moment you write it, आपकी काफी क्लैरिटी आ जाती है। How many 1000s require to make it 1? Now many children can tell me answer. हाथ खड़े करो, किस किस को आता है ये? वेरी गुड, अब तो पता चल गया होगा कि सेंटेंस क्या बता रहा है। फैंसी सेक्शन, अश्मीत कौर। फैंसी सेक्शन, बाकी बच्चे प्लीज कीप डूइंग। What should be coming here? यहाँ पे क्या आना चाहिए ब्लैंक में? अगर 100 करोगे तो फिर तो 1 0 बच जाएगी नीचे, लेकिन हमें तो 1 चाहिए वहां पे। क्या आना चाहिए और सोचो? 1000, 1000, ताकि ये पूरा कैंसिल होके 1 आ जाए। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 1000. This will be the answer. Okay, good. Sit down. It should be 1000. आपको स्पेलिंग लिखनी है, बिकॉज आपका सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आपको आंसर भी उसी फॉर्म में ही देना है। Second part. How many 1000s? How many 1000s? THS. THS. तो हम मैथमेटिकली फॉर्म में we are writing 1/1000. How many 1000s make 1/10? 1/10. Who are writing like this? जो अपनी नोटबुक में ऐसे प्रॉपरली लिख रहे हैं मैथमेटिकली, हाथ खड़े करो। वेरी गुड। अगर आप नहीं लिखोगे आपको नहीं समझ आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। यू आर डूइंग बाय फुल इंटरेस्ट। सेंटेंस को आपने मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है, फिर उसको परफॉर्म करना है। प्लीज राइट इट्स आंसर। व्हाट शुड कम हियर? हाउ मेनी 1000s मेक 1/10? 1/1000 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 1/10 आ जाए? वेरी गुड। डेफोडिल हरजोत सिंह, रोल नंबर 14।
अजोत सिंह इज देयर? आजू बेटा. जिनको आता है करो अपने आप, then match the answer. Yes बेटा, can you tell me? 1/1000 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 1/10 आ जाए? 100 से 100 से. तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? टेल मी द स्पेलिंग. Yes. 1000 100. ये स्पेलिंग ठीक है 100 के, या फिर THS आना चाहिए यहाँ पे? आना चाहिए THS. Yes. Yes or no? yes. बेटा यस नहीं, अगर THS लिखोगे तो फिर के ये 1/100 बन जाएगा. आपको 1/100 नहीं चाहिए, 100 चाहिए. 100 मीन्स 100. 100 के स्पेलिंग नॉर्मल अप टू D. कोई THS नहीं लिखोगे. अगर THS लिखोगे तो 1/100 बन जाएगा. 1/100 लिखोगे तो वो कटेगा कैसे उससे? ओके चलो, गुड, वेरी गुड. गो एंड डू इट. नो THS. क्वेश्चन में THS है लेकिन आंसर में आपको नहीं लिखना, बिकॉज हमें न्यूमरेटर में 100 चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए. डिनोमिनेटर में चाहिए होता तो हम THS लिखते. ठीक है, दीज आर द आंसर्स इन द ब्लैंक. स्पेलिंग फॉर्म में लिखो उसको. वेरी गुड. थर्ड पार्ट, डू इट योरसेल्फ. थर्ड पार्ट, how many 1000s THS? How many 1000s? How many? Make it 100th. 100th THS है वहां पे. हमें चाहिए 1/100. ध्यान से सोचो इसको. 1/1000 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1/100 आए? Yes, very good. Sunflower section, last girl. What it should be? 10 10. Spelling क्या होना चाहिए? Tell me the spellings. THEN T EN E N. That's it. 10. Not THS. ठीक है, हमें न्यूमरेटर में चाहिए था, हमें TH उसके साथ नहीं लिखना. सिर्फ हम 10 लिखेंगे और ये कट जाएगा इससे, और हमारे पास 2 0 बच जाएंगे. That will be 100. बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये चीज समझ आ रही है ना, you are gaining lot of knowledge from this question. I'm telling you. ठीक है, एंड साइड बाय साइड आंसर के साथ साथ आपको नॉलेज भी पता चल रही है कि हमने क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है. अभी यू आर टेकिंग टाइम, बच्चे इसको जब नेक्स्ट क्लास में 8th में करोगे, 9th में यूज करोगे, यू विल बी डूइंग इट मेंटली इन शॉर्ट मेथड. ठीक है, यू विल बी अप्लाइंग दिस नॉलेज फर्दर. ओके, फोर्थ क्वेश्चन बेटा. फोर्थ एंड फिफ्थ, डू इट योरसेल्फ. वेरी गुड. थोड़ा सा फास्ट करो. आई एम नॉट लीविंग एनी क्वेश्चन ओवर हियर. मैं इसमें से कोई भी आपको अपने सामने करवा रही हूँ सारे क्वेश्चंस, बिकॉज यू वांट टू गेट डीप नॉलेज अबाउट दिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ मेनी टेंस मेक 110? टेक केयर, कहाँ पे THS है और कहाँ पे नहीं है. हाउ मेनी टेंस? लोटस सेक्शन, लोटस सेक्शन. जगमीत सिंह, रोल नंबर 12. बेटे मेरे को बताओ कि मैथमेटिकली क्या लिखना चाहिए यहाँ पे. शुरुआत आप ही बताओ मेरे को कैसे करें क्वेश्चन की. बाकी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको. हाउ मेनी टेंस मेक 110?
What should I write here? Good, good. हाँ जी. How many tens? What should I write here then? Okay, मेरे को बताओ tens का meaning क्या है? What do you mean by tens? THS का मतलब क्या है? 10 या फिर 1/10? 1/10, yes. तो they are saying कि how many 110? कितने ही multiply करें ताकि आंसर आपके पास आए 110. 110 TEN. क्या बता सकते हो इसका आंसर? ब्लैंक में क्या आना चाहिए? वेरी गुड. डरना नहीं है बेटे, गलत होगा तो वी विल करेक्ट इट. ओके, आई एम नॉट टेकिंग योर टेस्ट. 1/10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए? अच्छा, जाके अपनी नोटबुक में करो, राइट एंड डू. आगे आपको मेंटली नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं. सनफ्लावर, सेकंड बेंच गर्ल, वेरी गुड. आ जाओ. मिडिल रो, वेरी गुड. जल्दी से उठ के आ जाओ. ओके ओके ओके, प्लीज प्लीज कम. जो भी उठ गया आ जाओ आगे. What should come here in the blank? मैम 10. बेटा 10 से तो ये कैंसिल हो जाएगा सारा, कुछ बचेगा ही नहीं. ब्लैंक में क्या आना चाहिए? क्या लिखे यहाँ पे कि हमारे पास 10 बच जाए? ओके, लिख के देखो. गो एंड राइट डाउन. अगर आप मेंटली कर रहे हो तो पक्का आप मिस्टेक करोगे. अगर आप लिख के कर रहे हो तो बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी. लोटस सेक्शन फर्स्ट बेंच बॉय, जल्दी से बता दो. What is that? Once again? 100. When you write 100, 1 0 has gone and you got 10. Okay, tell me the spellings also. HUNDR. That's it. It is all right. Yes. Sit down. Very good. Yes. Sunflower, say last corner boy. I can see your hand. You were raising your hands. I want to call you. Yes. Ajo beta. Tell me the next answer. Last one. Sunflower corner boy. Please, उठ के जल्दी से आ जाओ. Tell me the next part. Last part. वर्कशीट साथ लेके आओ अपनी. वेरी गुड. ले आओ. मेरे को 5th का आंसर बताओ. हाउ मेनी हंड्रेड्स. आप भी लिपसिंग करके मुंह से बोलो. Who are speaking from their mouth, they are doing it quickly. ठीक है, शोर नहीं मचाना, लाउडली नहीं बोलना, मेंटली उसको लिपसिंग करके बोलो. हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 110. मेरे को मैथमेटिकली बताओ बेटा, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में? हाउ मेनी हंड्रेड्स, कितने हंड्रेड्स? 100, 1/100 आएंगे टू मेक इट 110. 110 क्या आंसर आना चाहिए? मैम 10. सोच के बोलो. ये नीचे 100 है, आंसर 110 चाहिए आपको. ऊपर एक 0 बचना चाहिए न्यूमरेटर में. मैम 10. 1000. हाथ खड़े करो जिनको लगता है कि 1000 आना चाहिए. तभी तो 10 बचेगा ना हमारे पास. कैंसिल होके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और एक 10 बच जाएगा हमारे पास. ओके, राइट डाउन द स्पेलिंग्स. इट इज 1000. 1000, no THS.
THS अगर गलती से लिख लिया तो सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. टेक केयर, स्पीक करेक्टली so that you will write correctly. Okay, good. I hope everybody is done. Okay. चलो, very good बेटा. इसका 17th question also is your homework. 15th and 17th addition and subtraction of fractions you have to do yourself. Okay, this is your homework. Please do it. If you don't able to do it by chance, please ask me next time. Okay, जिनको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है, raise your hand. जिनको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि कहाँ हमने स्पेलिंग कैसे लिखनी है, डेसिमल कहाँ डालना है, फ्रैक्शन में 10 का मतलब क्या है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, गुड. थैंक यू बेटा. ऑल द बेस्ट एवरीवन. बाय बाय.